Now, air pollution levels in Delhi NCR have surged to alarming highs, with the air quality index crossing the 600 mark in several areas. Cities including Noida, Greater Noida, Ghaziabad, Gurugram and Faridabad are witnessing severely toxic air, posing serious health risks to residents. In response to the worsening situation, authorities have activated GRAP Stage 4, the highest level of emergency pollution control measures under the Graded Response Action Plan. Meanwhile, the overall AQI for Delhi continued to hover in the very poor category for the fifth continuous day this morning, with the city recording an AQI of 341 at 6 a.m. Despite the slight improvement, air in most parts of the national capital and its adjoining areas remain toxic to breathe. And now, viewers, of course, this is a situation that happens year on year, and we're going to give you a detailed Delhi AQI analysis where we're showing you how GRAP 4 has been implemented. And now, of course, Delhi, Haryana, Punjab on the 11th of November, we're going to show you in 2025 and, of course, compare that with 18th of November, which is today. So, on the 11th of November, 2025, we're showing you Delhi, Haryana and Punjab. You can see how the red area has been highlighted around Punjab. There's a lot of burning, stubble burning there. And if you compare that with the 18th of November 2025, of course, you can see clearly in those visuals on your screen, viewers, how much of stubble burning is happening. It's clearly highlighted in red to your left and, of course, to your right as well. So, this is a comparison between today and this year, of course, and last year. So, 2024 last year, viewers, was of course highlighted in red completely, and this year when you see the comparison, it's scattered, but it's still a lot. So, not much has changed. Now, let's look at, of course, the next slide, which is 11th of November 2025. So, now, viewers, we are giving you a complete comparison of the GRAP 4 implemented on the 18th of November 2024, where you see this. All right. So, now, of course, I have multiple reporters joining me who are reporting to us about the situation across the city. I have Aditya Vadhavan from Delhi, Ali Khan from Noida, Gulshan Grover from Gurugram and Anil Chaudhary from Ghaziabad. I'd like to go across to Aditya Vadhavan in Delhi. Aditya, what is the AQI level looking like? Well, absolutely, Vaishali. Indeed, the AQI is hovering between, above 400 across Delhi. The air quality is very, very hazardous. And, since we are seeing, the authorities have imposed these GRAP 3 measures, but still, at this juncture, the GRAP 3 measures have been imposed, but still, the vehicular police, vehicular traffic is still the very same as it was earlier. We have seen, there has been no reduction in the vehicles flying on road. So indeed, that is a problem for Delhi, because vehicular pollution is another major cause of pollution in Delhi. So indeed, we could expect further things to deteriorate as far as this is concerned. The situation is very, very grim at this juncture. The pollution situation is is concerning in Delhi. Hospitalizations are increasing due to the increasing air quality index. The AQI is about hovering in a very hazardous air quality. So indeed, the air quality index is at this juncture very hazardous quality. So indeed, it needs to be seen, how things unfold, because even the hospitalizations are increasing due to this pollution. Yes, Vaishali, back to you. All right, I'd like to go across to Ali Khan joining me from Noida.
अली, वहाँ पे AQI लेवल क्या है और क्या अभी कंटिन्यू हो रही है वाटर स्प्रिंकलिंग या वो बिल्कुल ही बंद हो चुकी है? नोएडा का करंटली AQI की बात करें तो 370 के आसपास आज बना हुआ है। कई जगहों पे 400 के भी पार है। नोएडा 116 की बात करें तो वहाँ पे 400 के पार का AQI है। और वाटर स्प्रिंकलिंग की बात करें तो कहीं कहीं कुछ कुछ इलाकों में वाटर स्प्रिंकलिंग नजर आ रही है, पर जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो जितनी अवेलेबिलिटी है, शायद मशीन की कम अवेलेबिलिटी है। पर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि 50 से ज्यादा टैंकर्स और 30 से ज्यादा एंटी गन्स लगातार वाटर स्प्रिंकलिंग का काम कर रही है, पर कहीं ना कहीं ग्राउंड पे उसकी कमी खासा देखी जा रही है। AQI का स्तर बेहद खराब स्थिति में पहुंचा है। ग्राफ 4 के नियम इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं। उसके बाद तमाम ऐसे जो कंस्ट्रक्शन के कार्य उन्हें बंद किया जाएगा। BS4 BS6 से नीचे के जितने भी वाहन हैं, जो डीजल वाहन है, पेट्रोल वाहन है, जो कमर्शियल वाहन है, उनकी दिल्ली में एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। ऐसे तमाम नियम अब लागू होते नजर आएंगे। वहीं मेन जो इसमें योग रहेगा वो कंस्ट्रक्शन के कार्यों पर रहेगा। मेन कंस्ट्रक्शन के जितने भी कार्य है वो तमाम जो कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन उन्हें छोड़ के तमाम कंस्ट्रक्शन कार्य बंद रहेंगे। और पोल्यूशन की वजह से जो लोगों को खासा परेशानियों को जो सामना करना पड़ रहा है, वो सांसों में, आंखों में जलन, गले में खराश, ऐसी तमाम समस्याओं से लोग दो चार होते नजर आ रहे हैं। तो ये बेहद खतरनाक स्थिति इस समय नोएडा और दिल्ली NCR के क्षेत्रों में AQI की बनी हुई है, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। All right, I also have Gulshan Grover joining me from Gurugram. Gulshan, गुरुग्राम में अभी AQI का कितना लेवल है? देखिए, इस समय गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में इस समय गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। हालांकि समय जो है इस समय लगभग 10 बजने को है, लेकिन इस समय भी जो आसमान पर सफेद चादर से पूरा आसमान ढका हुआ है, यानी ये स्मोक जो है वो साफ तौर से नजर आ रही है। और अभी भी लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में किसी भी तरह का जो सुधार है वो नहीं हो रहा है। एक और मैं आपको दृश्य दिखाऊं, जो स्टेज ग्रेप का स्टेज 4 लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी इस समय यहाँ पर निर्माण कार्य है जो यहाँ पर साफ तौर से चल रहा है। देखिए, मिट्टी की खुदाई जो है पूरी तरह से बंद है, उसके बावजूद भी मिट्टी की खुदाई यहाँ की जा रही है। तमाम जो लोग हैं वो अभी भी जो लेबर क्लास लोग हैं वो यहाँ पर लगी हुई है, जो कि निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है। प्रशासन का किसी भी तरह का कोई यहाँ पर देखरेख नहीं है, और उसके बावजूद धड़ल्ले से जो है निर्माण कार्यों पर इस समय निर्माण साइटों पर निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है। तो यही नज़ारा अगर गुड़गांव का रहा तो और ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी होगी, और लोगों की सांसों पर जो AQI भारी पड़ रहा है, चाहे सांस लेने में दिक्कत के मरीज हो, गले में खराश के मरीज हो, ये तमाम जो मरीज हैं इस समय अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। और फिलहाल ग्रैप का स्टेज 4 जरूर लागू है। जो नियम सरकार ने बनाए हैं उन पर अभी भी कोई पाबंदियां नहीं लगी है, चाहे जनरेटर चलाने पर रोक हो, या फिर कोयला जलाने पर रोक हो, या कूड़ा जलाने पर रोक हो। ये तमाम चीजें जो हैं ग्रैप स्टेज 4 में आती हैं, लेकिन अभी भी धड़ल्ले से जो प्रशासन के जो नियम है उनकी धज्जियां जो है साफ तौर से उड़ाई जा रही है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव बेशक ये दावे कर रहा हो कि उन्होंने तमाम तरह की जो पाबंदियां हैं वो लगाई हैं, तमाम जो लोग हैं वो इन नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं, और लोग अब खुद भी ये नहीं समझ रहे हैं कि वो भी इसका शिकार हो रहे हैं, क्योंकि जो ग्रैप स्टेज 4 लागू हुआ है वो तमाम उन लोगों के लिए हुआ है जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, और अन्य जो लोग बीमार ना पड़े इसलिए स्टेज 4 को लागू किया गया है। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो भी नियम बनाए गए हैं उनकी धज्जियां साफ तौर से लोग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए यही कारण है कि गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। इस समय भी 400 पार एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है, और अगर यही स्थिति रही तो आने वाले कुछ दिनों में और ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी देखी जा सकेगी। All right, now Anil Chaudhary is also joining me from Ghaziabad. Anil, गाजियाबाद में AQI का क्या हाल है अभी? देखिए, AQI की अगर बात करें तो 400 के पास जो है गाजियाबाद का बना हुआ है। जो दिल्ली से सटा हुआ का नोनी का है वहां पर 420 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है। वहीं वसुंधरा की बात करें तो वसुंधरा गाजियाबाद के क्षेत्र में 400 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। तो गाजियाबाद के तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ पर
एयर की क्वालिटी बेहद खराब हो चुकी है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में आज ग्रेड 4 के नियम भी लागू कर दिए गए हैं। ग्रेड 4 के नियम जब लागू होते हैं तो कई कड़े कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि लगातार पानी का छिड़काव होना। तस्वीरें भी दिखा सकते हैं, क्योंकि अब युद्ध स्तर पर काम, पोल्यूशन को रोकने के लिए काम किया जा रहा है। आप देखेंगे किस तरीके से जो छिड़काव है वो यहाँ कर्मचारी नगर निगम के करते हुए साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। वहीं आप देखेंगे दूर दूर तक भी आपकी नजर जाएगी तो सिर्फ पोल्यूशन ही पोल्यूशन दिखाई दे रहा है। यही वजह भी है आज जो है ग्रेड 4 के नियम लागू करने पड़े। और ग्रेड 4 के नियम जब लागू अब किए गए हैं उसके बाद जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर जो ट्रक है, ट्रक पर प्रतिबंध लगाया गया है एंट्री पर। और BS3 के वाहन पहले से ही प्रतिबंध है, जिसको लेकर टीम आज लगा दी गई है। टीम लगातार चेकिंग करेगी। यदि BS3 के वाहन यदि दिल्ली के अंदर एंट्री करते हैं तो उनको पूर्ण तरीके से जब्त करने का काम, उनको सील करने का काम किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट भी किया गया है, लोगों को हिदायत दी जा रही है, क्योंकि अब आसपास का जो वातावरण है वो बिल्कुल भी इनहेल करने लायक नहीं बचा है। तो इसीलिए लोगों को ये कहा गया है जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर पर ही रहें, और निकल भी रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर कर लें। साथ ही बच्चे और बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाएं और जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त चल रहे हैं उनको साफ तौर पर उनको तो खासकर कहा गया है। हालांकि गाजियाबाद स्कूल प्रशासन की तरफ से बच्चों के लिए जो है आउटडोर एक्टिविटी है फिलहाल बंद कर दी गई है। ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं स्कूल प्रशासन की तरफ से। आउटडोर फिलहाल जब तक जो है पोल्यूशन आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा तब तक आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं कराई जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही जो एक्टिविटी होनी है वो ही आप कर पाएंगे। इस तरीके की जो बच्चों को साफ तौर पर बता दिया गया है। तो ये तमाम कदम अब उठाए जा रहे हैं और अब देखना यही होगा आखिरकार कब तक इस खतरनाक पोल्यूशन पर जो है लगाम लग पाएगी, या लोग ऐसे ही दमघोटू हवा में सांस लेने को मजबूर रहेंगे। लोग उम्मीद कर रहे हैं तो शासन अपने स्तर पर काम कर रहा है, पर अब लोग चाहते हैं कि कुदरत की कोई मेहर हो, बारिश हो जाए। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कोई भी फिलहाल बारिश का अलर्ट नहीं है, तो लोगों को अभी ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा। जी। All right, I want to go back to my colleague Aditya Vadhavan joining me from Delhi. Now, Aditya, have you been able to speak to people and find out how they're taking precautions? And what about the hospital situation? Have admissions increased because of the pollution? Well, absolutely, Vaishali. Indeed, people are facing increasing people are facing increasing irritation in the eyes and ears, due to this foul air that is, in this Delhi. And even during even the hospitalizations are increasing because of these hospitalizations are going up. And the most the affected people due to this are the people who are facing problems due to the asthma and bronchitis. The patients who are asthmatic and have bronchitis are increasingly facing difficulties in breathing due to the large concentration of the particulate matter in Delhi's air. So indeed, things are becoming very, very difficult for the people of Delhi, considering the fact that this pollution is expected to stay in this manner only in the coming months. Yes, Vaishali. All right. Now, Ali Khan is also joining me from Noida. Ali, जो हॉस्पिटल की एडमिशंस हैं क्या वो बढ़ी हैं कुछ दिनों में? बिल्कुल, हॉस्पिटल में जो ओपीडी के मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। जो गले में खराश, आंखों में जलन, सांस संबंधित समस्याओं के मरीज लगातार जो नोएडा के अस्पतालों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। जिला अस्पताल के अधीक्षक से भी हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि मरीजों में 30% की वृद्धि देखी गई है। 30% का इंक्रीज एकदम नजर आया है, जो दिवाली के बाद से इंक्रीज नजर आया है कि रोजाना सांस संबंधित समस्याओं के मरीज लगातार आ रहे हैं। जिन्होंने ज्यादातर इसमें जो मरीज हैं उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, जिन्हें अकलन है शरीर में, वो उस टाइप के मरीज हैं। आंखों में जलन है, गले में खराश है,
थ्रोट इन्फेक्शन हैं, इस टाइप के मरीजों की संख्या एकदम स्पाइक हुआ है। ऐसे मरीज लगातार पहुंच रहे हैं और लोगों को इससे खासा समझ। वहीं जो जिला अस्पताल के अधीक्षक हैं उनकी तरफ से गाइडलाइंस भी जारी गई है कि बहुत जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। निकल रहे हैं तो N95 या उससे ऊपर के मास्क का उपयोग करें। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर जो ये इनहेल कर रहे हैं, जो हम हवा है ये PM2.5 जब हम इनहेल करते हैं, ये इतनी खराब हवा को जब इनहेल करते हैं तो ये कार्डियक अरेस्ट, श्वास संबंधित समस्याएं और लंग्स कैंसर जैसी समस्याओं की स्पीड को 10 गुना बढ़ा देता है, 10 गुना ज्यादा खतरा पैदा कर देता है। ऐसी बीमारियों होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये बेहद ही खतरनाक बात है कि अगर हम इस हवा को ज्यादातर इनहेल करेंगे तो और ज्यादा बड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। वैसा गुलशन ग्रोवर फ्रॉम गुरुग्राम इज विथ मी। गुलशन, गुरुग्राम में क्या आप कुछ लोगों से बात कर पाएँ कि वो क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं और वहाँ पे भी क्या सिचुएशन है? क्या एडमिशंस हॉस्पिटल में बढ़े हैं कुछ दिनों में? गुलशन, सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? देखिए, बिल्कुल सिविल अस्पताल में पहले से ज्यादा ओपीडी की संख्या बढ़ी है। पहले जहां सिविल अस्पताल में 2500 के लगभग ओपीडी थी, लेकिन अब वो 4000 4,500 के लगभग रोजाना ओपीडी की संख्या हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा जो मरीज सामने आ रहे हैं उसमें गले में खराश के मरीज आ रहे हैं, आंखों में जलन के मरीज सामने आ रहे हैं, या फिर एलर्जी के आ रहे हैं, अस्थमा के आ रहे हैं, जुकाम के आ रहे हैं, बुखार के आ रहे हैं। ये तमाम मरीज हैं जो इस समय अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। और खासकर जो आपने लोगों की बात की, इस समय लोग मास्क हालांकि पहनना इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइंस सामने नहीं आई है कि आपको मास्क पहनना जरूरी है। लेकिन डॉक्टर ये जरूर सलाह दे रहे हैं कि आप यदि अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप N95 मास्क जरूर इस्तेमाल करें, ताकि आप ये जहरीली हवा की सांस लेने से बच सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम लोग, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों या फिर दुकानदार हों या फिर काम करने वाले लोग हों या जो मार्केट में जो शॉपिंग करने के लिए आते हैं या खरीदारी करने के लिए कुछ आते हैं, वो बिना मास्क जो है इस समय घूम रहे हैं। हालांकि लोगों की सेहत पर जरूर असर पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अब स्वास्थ्य विभाग साफ तौर से लोगों को गाइडलाइंस ये जरूर दे रहा है कि जो भी तमाम लोग हैं जो इस जहरीली हवा से अगर बचना चाहते हैं तो वो N95 का मास्क इस्तेमाल करें, ताकि इस जहरीली हवा की सांस लेने से बच सके। अगर गुरुग्राम नगर निगम की अगर हम बात कर लें तो गुरुग्राम नगर निगम इस समय टैंकरों के माध्यम से इक्का दुक्का जगह जरूर छिड़काव कर रहा है। और हमने देखा कि चाहे जहां पर सिविल लाइन एरिया है, जो कि काफी पोस्ट एरिया है, जहां पर तमाम पॉलिटिशियंस रहते हैं, वहां पर जरूर हमने देखा कि छिड़काव किया जा रहा है। यानी VVIP एरिया हम कह सकते हैं कि उन जगहों पर जरूर नजर है नगर निगम की। इसके अलावा अगर कोई अन्य इलाके कहें या गलियां कहें या फिर रोड कहें, वहां पर अभी किसी भी तरह का कोई इस तरह का मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। बेशक गुड़गांव नगर निगम का बजट 1700 करोड़ रुपए सालाना हो, उसके बावजूद भी जो जी गुलशन, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी नजर के नहीं लिए। आ रही है। And with that, I'm slipping into a short commercial break. See you on the other side.